Hello everyone, I am Muhammad Salim and welcome to the channel Right Directions by Salim. This is part 4th of the series of videos covering important topics or say some important notes from political and economic subject. So please listen, this is part 4th. These are just some little points from my personal notebook diary. Ordinance. Article 123 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of the Parliament. Article 123. This power has been vested in him to deal with unforeseen or urgent matters. Then, the 38th Constitutional Amendment Act of 1975 made the President's satisfactions final and conclusive and beyond judicial review, but this provision was deleted by 44th Constitutional Amendment Act of 1978. Thus, the President's satisfaction is justiciable on the ground of malafide. The President can also withdraw an ordinance at any time. However, his power of ordinance making is not a discretionary power, and he can promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Now the pardoning power. Article 72 empowers the President to grant pardons to persons who have been tried and convicted of any offense. Pardoning power of President is independent of judiciary, that is, it is an exclusive power. The President, while exercising pardon, does not sit as a court of appeal. The object of conferring this power is twofold. Number one, to keep the door for correcting any judicial errors in the operation of law, and second, to afford regards are unduly harsh. To afford relief from a sentence which the President regards as unduly harsh. These two are the objectives for giving pardon. Let's discuss about Vice President, which is mentioned in Article 63 of the Constitution. Vice President, 63 article. The Vice President is the second highest constitutional office in the country. He serves for a 5-year term but can continue to be in office irrespective of the expiry of the term until the successor assumes office. ठीक है. Now election. Vice President is indirectly elected like the President, and next point, he means Vice President. He is elected by the members of the Electoral College consisting of the members of both houses of the Parliament. Thus, this Electoral College is different from the Electoral College for the election of the President in the following respect. Number one, in the Electoral College of means the electoral college for Vice President's election consists of both elected and nominated members of the Parliament. In the case of President, only elected members were included. But here both the nominated and elected members of both the houses. Second, this electoral college for Vice President election does not include members of the state legislative assemblies. That is, MLA are not included. But in the case of President, elected MLAs were included in Electoral College. Now, qualifications for becoming a Vice President. A person cannot be elected as a Vice President unless, number one, he is a citizen of India. Second, he has completed 35 years of age. Third, he is qualified for election as a member of the Council of States, Rajya Sabha. ये conditions होनी चाहिए उसमें. Now, in Article 102, Article 102 में क्या है ये देखते हैं. Article 102. Under this, a person cannot become a member of the Lok Sabha or Rajya Sabha if he is of unsound mind and a competent court has declared so. An undischarged insolent has voluntarily acquired the citizen of a foreign state
और इफ़ ही हैज़ बीन डिसक्वालीफाइड अंडर एनी पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है, ये कंडीशन है, इनके तहत कोई बंदा ना लोकसभा ना राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। अगर उसका दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, अगर किसी कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ भाई ये दिमागी तौर पे फिट नहीं है, ठीक है, या वो ऐसा इंसॉल्वेंट हो चुका, अनडिस्चार्ज, ठीक है ना, इतना मतलब कि इंसॉल्वेंट हो चुका है, डिस्चार्ज ना किया जाए उसको, या फिर अगर किसी उसने वॉलंटरी किसी दूसरी कंट्री की जो है वो सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है ना, तो या पार्लियामेंट्री किसी लॉ के तहत वो डिसक्वालीफाइड कर दिया गया, तो तब वो मेंबर नहीं बन सकता लोकसभा या राज्यसभा का। अगर वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता, दैट मीन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 102 में था। आर्टिकल 66 क्लास 4, आर्टिकल 66 क्लास 4, आर्टिकल 66 सब क्लास 4 क्या कहती है? A person is not eligible if he holds any office of profit under the government of India or a state government or any subordinate local authority। ठीक है, उसके बाद he should neither be an MP nor an MLA। पहले हो, लेकिन जब बन जाए, बनने से पहले उसको रिज़ाइन करना होगा। ठीक है, इलेक्शन से पहले। उसके बाद एज पर आर्टिकल 66 क्लास 2, आर्टिकल 66 सब क्लास 2 में क्या है कि इफ़ आइदर एन MP, MLA और MLC इज़ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ही इज़ डीम्ड टू हैव वैकेटेड ही सीट इन दैट हाउस द डेट ही शी इंटर्स हीज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट। जिस दिन वो अपने मतलब कि नए ऑफिस में जाएगा, उस दिन से मानना जाएगा कि वो MLA MLC है, उसकी सीट खाली होगी। पहले नहीं, जब वो ऑफिस में चला जाएगा तब। ठीक है, तो उसके बाद ये है सुपरिटेंडेंस कैसे होती है। ठीक है ना, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कुछ देखते हैं। द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ टू बी हेल्ड विद इन 60 days मीन्स 2 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद द रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटेड टू कंडक्ट वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय रोटेशन। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल होता है पार्लियामेंट का, किसी हाउस का भी। ठीक है, उसके बाद एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एंड इंटेंडिंग टू स्टैंड फॉर इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय एटलीस्ट 20 MPs एज प्रोस्पर्स एंड एटलीस्ट 20 MPs एज सेकेंडर्स। ठीक है, प्रपोज करने वाले के उसको हाँ भाई ये वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, कम से कम 20 MPs जो हैं उसको प्रपोज करें कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट, और 20 जो हैं उसको सेकेंडर्स होने चाहिए जो बाद में सपोर्ट भी करें, तब वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 15,000। ठीक है ना, ही लास्ट दिस अमाउंट इफ़ ही डज नॉट सिक्योर 1/6 ऑफ द वैलिड वोट। अगर वो 1/6 वैलिड वोट नहीं ले सकता, तब ये 15,000 उसका ज़ाया, वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ आर इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 के तहत जितने भी डाउट डिस्प्यूट्स हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड हैं, वो सारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट देखेगी उसको। ठीक है, A petition challenging the election of vice president is heard by 5 judge bench of the Supreme Court। ठीक है, 5 जज बेंच सुनेगी वाइस प्रेसिडेंट की जो भी पेटिशन जो उसके इलेक्शन को चैलेंज करेगी। द पेटिशन हैज़ नेसेसरली टू बी अकम्पनीड बाई ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 20,000। 20,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होगी इस पेटिशन के साथ। उसके बाद रिमूवल। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाई ए रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एट दैट टाइम एंड एग्रीड टू by the Lok Sabha। at least 14 days notice is given in advance। ठीक है, then unlike the president's impeachment reason is violation of constitution, but for the removal of vice president no cause or reason has been mentioned in the constitution। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के लिए इम्पीच करा जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि जो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी रिमूवल के लिए कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रीज़न कॉज नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, पार्लियामेंट में देखेगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ साइलेंट
The Constitution is silent on who performs the duties of the Vice President when a vacancy occurs in the office of the Vice President of India before the expiry of his term or when the Vice President acts as the President of India. ठीक है. अच्छा, उसके बाद कुछ और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 इट सेज दैट ओनली दैट MP शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. हाँ, आर्टिकल 75 कहता है सेज दैट ओनली प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. आर्टिकल 75 में लिखा गया. ये आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ने लगे. ठीक है, कि प्राइम ये 75 में ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ, कि बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है. जैसे प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल. ठीक है, इनका ये होता है चेयरमैन. ठीक है, ये बीच में एक और पॉइंट यहाँ से नोट लिखा हुआ अलग से है, इसका थोड़ा देख लें. सेनेट क्या होती है कि अमेरिकन का जो अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है ना, वहाँ पर का अमेरिकन जो लेजिस्लेचर अपर हाउस को बोलते हैं सेनेट. अब हम ये अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मतलब यह प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो हम पढ़ रहे थे. ठीक है, अच्छा, आगे ये हम देखते हैं नेचर ऑफ एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देते हैं वो उसका किस टाइप की होती है वो. ठीक है ना. द 42nd and 44th Constitutional Amendment Acts have made the advice binding on President. The advice of Council of Minister binding on the President. ये 42वां और 44वां तरमीम बिल. ठीक है. Further, the nature of advice tendered by ministers to the President cannot be inquired by any court. ठीक है, किस किस्म की एडवाइस जैसे मिनिस्टर ये कोर्ट नहीं देख सकती. ठीक है. This provision emphasizes the intimate and the confidential relationship between the president and the ministers. ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि in 1971 the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha the Council of Ministers does not cease to hold office. 1971 में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, कि जब लोकसभा डिसोल्यूशन हो जाएगी उसकी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो अपना ऑफिस बरकरार रखेंगे. देन आर्टिकल 74 इज़ मैंडेटरी एंड देयरफॉर द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस नहीं करते. 74 आर्टिकल में जो है ये मेंशन है, मैंडेटरी है. ठीक है, any exercise of executive power without the aid and advice of the council of ministers will be unconstitutional as being violative of article 74. कोई भी अगर प्रेसिडेंट ऐसा एग्जीक्यूटिव काम करता है जो कि मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी, जैसा कि आर्टिकल 74 में मेंशन है, उसकी वायलेशन होगी. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है तो प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड. देन आर्टिकल 75 clearly states that the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. आर्टिकल 75 बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, in India there is no provision in the constitution for the system of legal responsibility of a minister. Then moreover the courts are barred from inquiring into the nature of advice rendered by ministers to the president. ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 74. ये क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको COM भी बोल सकते हैं हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट. 74 में बोलते हैं कि मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी है. ठीक है, आर्टिकल 75 क्या कहता है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स. क्या क्या प्रोविजंस हैं. ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट एंड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. देन टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग PM इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% of the total strength of Lok Sabha, that is
एंड एज पर 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. लेट्स सी आर्टिकल 77. इसमें है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये आर्टिकल 77 में कंडक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो भी काम काज है. ठीक है. आर्टिकल 75 जो है ये कहता है कि ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी है ये आर्टिकल 78 में बोला गया. ठीक है. आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122. आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 पार्ट 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें आते हैं ये. ठीक है ना. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन. ठीक है. ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस एंड पावर्स एंड सो ऑफ द एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर ये सारे किस में कवर होते हैं? पार्ट 5 के आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 में. ठीक है. द प्रेसिडेंट कैन, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोक सभा इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोक सभा. Originally, this provision was to operate till 1960 1960 तक, but has been extended till 2020 by the 95 Constitutional Amendment Act 2009. ठीक है. Also under the same 95th Amendment Act 2009, the reservation of seats for SC and STs extended for another 10 years and it will last till 2020. ठीक है. अब थोड़ा राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है. राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952. ठीक है. 1/3 members retire every second year. Their seats are filled up by fresh elections and presidential nominations at the beginning of the every third year. Retiring members are eligible for re-election and renomination. ठीक है. Any number of times, कभी भी. ठीक है. कुछ और पॉइंट ये साइड में लिखे हैं, ये पढ़ लेते हैं. जैसे ये पॉइंट मैंने लिखा है कि डिज़ॉल्विंग ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. उसके बाद ये है कि टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year during national emergency, but this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. ठीक है. कि लोकसभा की टर्म जो है ये 1 साल तक बढ़ाई जाती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन ये एक्सटेंशन जो है ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी जब इमरजेंसी रुक जाएगी. थैंक यू वेरी मच. आगे नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, 5th पार्ट 5th, उसमें हम दूसरे वाली चीज़ें कवर करेंगे. ठीक है.